जय हिंद भाई सारे कैंडीडेट्स ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਲਾਸ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MCQ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 81 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਰਟੀਕਲ 81 ਦੇ ਵਿੱਚ। 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। 79 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਦੋਂ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 1952 ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 1952 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ 13 ਮਈ 1952। ਈਅਰ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬਣੇਗੀ ਉਸੇ ਸਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਡੇਟ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, 13 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 1952 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬਣੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਸੇਮ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਦੇਸ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੋਵੇਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਸਟਾਰ ਲਾਇਓ, 2 ਸਟਾਰ ਲਾ ਕੇ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਿਓ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਨਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਦਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਰਚਿਤ ਸਦਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯੁਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਦਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਸਦਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਸਦਨ, ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ, ਚਰਚਿਤ ਸਦਨ, ਯੁਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਦਨ, ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਸਦਨ। ਇੰਨੇ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੋਲੋ, ਪਹਿਲਾ ਸਦਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟੱਚ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਦਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਿਤ ਸਦਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੁਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਦਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੁਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਦਨ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਏਜ ਸਿਰਫ 25 ਈਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ? 25 ਈਅਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਯੁਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਦਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਾ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀ ਆਰਟੀਕਲ 81 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਜੀ 500। ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 500 ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? 7ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸ਼ੋਧ ਕਰੀ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 525 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ 31ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸ਼ੋਧ ਕਰੀ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 545 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਆ, ਦਮਨ ਤੇ ਦੀਵ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 545 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 552 कर दिता गया। सो ये सीटां का इंक्रीमेंट है, थोड़ा जिहा तुसीं ध्यान रखना है, बस रटन की ज़्यादा कोई जरूरत नहीं, बस माड़ी जी निगाह दे विच होना चाहिए कि बाई चांस कोई ऑप्शन दे विच दिस जे तो तुसीं उहनूं क्लिक कर सको, ठीक है।
ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 552 ਸੀਟਾਂ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸੀਟਾਂ ਜੀ? ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਬਾਈ। ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਆਏ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਵੀ ਆਏ, ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਆਏ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਆਪਦੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2 ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ। ठीक है, बट हुण तां अपनी आज़ादी नूं काफ़ी साल हो चुके हैं, तकरीबन सारे हुण इंडियन परिवार है, इदां दे कोई ज़्यादा परिवार बचे नहीं। इस करके ये जिहड़ी 2 सीटां है हुण इन्हां नूं खत्म कर दिता गया। हुण बाई कहण दे नाल सीटां जिहड़ियां खत्म नहीं होंदी, संविधान दे विच लिखी हुई है तां इन्हां दी प्रोसैस भी हुंदी है। तां प्रोसैस ये हुई, अधिनियम 2019 पेश किया गया, 126 नंबर का बिल सी, ठीक है। तो उस तो बाद संविधान दे विच एक शोध करी गई सी, 104 नंबर की शोध, संविधान शोध 104 के राही ये जिहड़ी 2 एंगलो इंडियन सीटां सी जिन्हां दा जिक्र संविधान के आर्टिकल 331 विच हुंदा है, इन्हां नूं रद्द कर दिता गया। गल आई समझ? एंगलो इंडियन इहो ਜਿਹੇ ਬੱਚे सी जिन्हां दी माता इंडियन सी ते जिन्हां दा पिता यूरोप के किसी एक कंट्री का सी, उन्हां दे हितां दी राखी वास्ते ही 2 एंगलो इंडियन सीटां रखी गई सी। बट हुण आज़ादी नूं बथेरे साल हो चुके, इदां दे कोई ज़्यादा बच्चे बचे नहीं। सो इस करके 2 सीटां हुण खत्म करी गई। खत्म करन वास्ते संविधान शोध हुई 104 नंबर की ते आर्टिकल 331 विच जिहड़ी 2 एंगलो इंडियन सीटां रखी गई सी इन्हां नूं रद्द कर दिता गया। ठीक है, सो ये तुसी ध्यान रखना है। इस तो इलावा इंपोर्टेंट पॉइंट तुसी ये भी ध्यान रखना है कि जिहड़े एंगलो इंडियन सी ना, जिहड़ी ये 2 सीटां सी, इन्हां दे उत्ते इलैक्शन नहीं हुंदा सी क्योंकि एंगलो इंडियन परिवार बहुत ही लिमिटेड सी। इस करके की हुंदा सी, जिहड़े 2 प्रतिनिधि एंगलो इंडियनां दे हुंदे सी, इन्हां नूं राष्ट्रपति नोमीनेट करदा सी। ठीक है, ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, एंगलो इंडियन ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਨੋਨੀਤ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਤਮਾਨ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਸੀਟਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ? 550। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 552। 2 ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਹਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 550 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 543 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 543 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 524 ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 19 ਸੀਟਾਂ यूटी ਤੋਂ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ। सो ये डेटा तुसी ध्यान रखना है। वर्तमान दे विच जिहड़ी लोक सभा सीटां है वो है जी 543 ते इन्हां दे विचों 524 सीटां स्टेटां तो 19 सीटां यूटी तो भरी गई है। ठीक है, अगे चलते हैं, इलैक्शन की गल करते हैं तो लोक सभा के मैंबर बनने वास्ते जिहड़े इलैक्शन होंदे है वो डायरैक्ट इलैक्शन होंदे, किदां दे? डायरैक्ट इलैक्शन होंदे। ठीक है, ओके। योग्यता की गल करिए तो योग्यता जिहड़ा है लोक सभा मैंबर बनने वास्ते जिहड़ी योग्यता है उसका जिक्र आंदा जी संविधान के आर्टिकल 84 दे विच ते इस दे विच लिखिया गया है कि मैंबर बनने वास्ते ਜਿਹੜਾ भी बंदा है वो भारत का नागरिक होए, घट्टो घट्ट 25 साल उसकी उम्र होए ते किसी भी लाभ के अहुदे ते ना होए, मतलब कोई सरकारी नौकरी ते ना होए ते घट्टो घट्ट 25 साल उम्र होए। इस दे बारे आपां पहलां भी गल कर चुके हैं कि लोक सभा नूं युवावां दा सदन कहा जाता है। ये जिहड़ा एज वाला पॉइंट है ये तुसीं स्टार ला के नोट डाउन कर लेना है। एग्जामिनर सीधा सीधा पूछ लेगा कि लोक सभा का मैंबर बनने वास्ते घट्टो घट्ट उम्र हद कितनी होनी चाहिए, तो वह होएगी जी 25 साल। आर्टिकल किहड़ा जी? 84 आर्टिकल दे विच योग्यता की गलबात करी गई है। ठीक है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की गल करते हैं। कार्यकाल बारे पूछा गया तो अपना जिहड़ा संविधान है उसके आर्टिकल 83 भाग 2 दे विच लोक सभा मैंबर का जिहड़ा कार्यकाल है उसके बारे गल की गई है। लोक सभा मैंबर ते लोक सभा के कार्यकाल बारे गल करी गई है। सो लोक सभा का कार्यकाल कह लो, भावें उसके मैंबर का कार्यकाल कह लो, कितना होंदा है जी? 5 साल का। 5 साल बाद फिर कोई नवी पार्टी आती है, कोई नवा मुख्यमंत्री बनता है। ठीक है, तो जी लोक सभा भंग हो जाती है, फिर सिरे तो उन्होंने बनाया जाता है तो नवी लोक सभा बनती है। ठीक है, तो उसका कार्यकाल कितना होंदा है? 5 साल। लोक सभा के मैंबर का कार्यकाल पूछे या फिर लोक सभा का कार्यकाल पूछे, दोवां का कार्यकाल कितना होंदा जी? 5 साल का ही होंदा है। हो सकता है माड़ी मोटी एमरजेंसी के वेले नूं वधाया जा सके, बट मोस्टली 5 साल का होंदा है। ठीक है, ओके। अगे चलते हैं, नैक्सट वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जी
पॉइंट सौं चुकाउण दा। हुण एग्जामिनर सीधा सीधा पूछेगा लोक सभा के मैंबर जिहड़े उन्हां नूं सौं कौन चुकाउंदा है? वो चुकाउंदा है जी राष्ट्रपति। ठीक है, लोक सभा के मैंबरां नूं सौं कौन चुकाउंदा है? राष्ट्रपति चुकाउंदा है। ते उस दी गल कित्थे होई है जी? आर्टिकल 99 दे विच। ठीक है, ये आर्टिकल थोड़े जिहे तुसीं ध्यान रखने, स्पेशली पुलिस वाले जिहड़े जवान है, फॉरेस्ट गार्ड वालियां नूं तां इन्नी जरूरी नहीं, बट पुलिस वाले जिहड़े कैंडिडेट है वो ध्यान रखणगे बई आर्टिकल भी। ठीक है, आर्टिकल 99 दे विच गल हुंदी है जी सौं चुकाउण बारे। लोक सभा के जिहड़े मैंबर हुंदे आ उन्हां नूं सौं कौन चुकाउंदा है? राष्ट्रपति सौं चुकाउंदा है। इस तो अलावा कोई बंदा संसद के किसी भी सदन का मैंबर बने बगैर भी 6 महीने तक मंत्री रह सकता है, बट उस तो बाद जे वो मंत्री बनना चाहता है तो उन्होंने किसी ना किसी सदन का मैंबर बनना होगा। ठीक है, एक वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट होर मनी बिल बारे। मनी बिल जो दोस्तों हमेशा लोक सभा के विच ही पेश होता है। एग्जामिनर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेंदा है कि मनी बिल जो है वो सब तो पहला कित्थे पेश कराया जाता है? ध्यान रखियो, लोक सभा के विच पेश कराया जाता है। मनी बिल नूं धन विधेयक भी कहा जाता है। ठीक है, सो ये पॉइंट तुसीं ध्यान रखने हैं। तो हुण तुसीं रेडी हो जाओ भाई MCQ टेस्ट वास्ते। तो फटाफट सारे जवानों ने भाई सवालों के जवाब जोड़े ट्राई करने हैं। जिन्ने भी जवान तुसीं देख रहे हो सारिਆਂ ने ट्राई करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन ते लग्या होया, पूछा गया जी लोक सभा का कार्यकाल कितना हुंदा है? जे तुसीं क्लास वधिया तरीके नाल अटेंड करी है तो यह क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आराम नाल तुसीं सारे सवालों के जवाब दे सकते हो। तो इन्हां विचों ही क्वेश्चन तुहानूं एग्जाम विच देखण नूं भी मिल जाएगा। सो लोक सभा के कार्यकाल की गल हो रही है तो कितना होंदा जी? लोक सभा का कार्यकाल पूछे भावें लोक सभा के मैंबर का कार्यकाल पूछे, दोवें होणगे जी 5 साल। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, ओके, अगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की आप गल करते हैं। तो पूछा गया है जी लोक सभा का मैंबर बनने के लिए घट्टो घट्ट कितनी उम्र होनी चाहिए है? लोक सभा का मैंबर बनने वास्ते घट्टो घट्ट उम्र कितनी होनी चाहिए है? तो क्वेश्चन नूं स्टार भी ला लियो तुसीं। तो सही जवाब की होएगा जी? बिल्कुल ऑप्शन बी 25 साल सही जवाब होएगा जी। लोक सभा का मैंबर बनने वास्ते घट्टो घट्ट 25 साल की जी उम्र है वो होनी चाहिए। नैक्सट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मनी बिल कित्थे पेश किया जाता है? मनी बिल कित्थे पेश किया जाता है? तो सही जवाब की होएगा जी? लोक सभा दे विच, सिर्फ लोक सभा दे विच ये जिहड़ा बिल है पेश कराया जाता है। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होएगा। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन की आप गल करते हैं तो इत्थे पूछा गया जी संसद के निचले सदन नूं की कहा जाता है? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, संसद के निचले सदन नूं की कहा जाता है? फटाफट दसो सारे जवान। तो सही जवाब की होएगा जी? सही जवाब होएगा जी लोक सभा। ठीक है, ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की गल करते हैं। पूछा गया जी कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन के मैंबर बने बगैर केंद्र दे विच किन्ने समय तक मंत्री बनया रह सकता है? कोई बंदा जिहड़ा है वो संसद दे विच किन्ने समय तक मंत्री बनया रह सकता है बिना किसी सदन का मैंबर बने? तो सही जवाब की होएगा जी? सिर्फ 6 महीने। 6 महीने तक वो मंत्री बन के रह सकता है, बट उस तो अगे जो उन्हें मंत्री रहना है तो किसी ना किसी सदन का हिस्सा बनना होएगा। ठीक है, ओके, नैक्सट क्वेश्चन की आप गल करते हैं। पूछा गया जी किहड़े आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति राही लोक सभा के मैंबरां नूं सौं चुकाई जाती है? आर्टिकल ध्यान रखने पुलिस वाले जिन्ने भी हो, तो किहड़े आर्टिकल के तहत सौं चुकाई जाती है जी? फटाफट दसो। बिल्कुल सही जवाब होएगा जी आर्टिकल 99। ठीक है, आर्टिकल 99 के तहत जिहड़े लोक सभा के मैंबर हुंदे है राष्ट्रपति उन्होंने सौं चुकांदा है। नैक्सट क्वेश्चन की आप गल करते हैं तो इत्थे पूछा गया है जी संविधान के किहड़े आर्टिकल दे विच मनी बिल की परिभाषा दी गई है? संविधान का किहड़ा आर्टिकल है जिस दे विच मनी बिल की परिभाषा जिहड़ी है वो दी गई है? तो सही जवाब की होएगा जी? आर्टिकल है जी 110 नंबर वाला। ठीक है, ऑप्शन ए सवाल का बिल्कुल सही जवाब होएगा। अगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की आप गल करते हैं। पूछा गया जी किहड़ी स्थिति दे विच लोक सभा का कार्यकाल 5 साल तो वध वधाया जा सकता है? किहड़ी स्थिति दे विच लोक सभा का कार्यकाल 5 साल तो वध वधाया जा सकता है? दसो फटाफट। आप पहला गल करके आया कि लोक सभा का जिहड़ा कार्यकाल है वह 5 साल का हुंदा है, तो किहड़ी हालात दे विच वध सकदा है जी? वो वध सकदा है जी राष्ट्रीय एमरजेंसी दे वेले।
ठीक है, जे कोई देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਵੇ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਦਸਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਸਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ कि सही जवाब जोड़ा है वो की होएगा। तो सही जवाब होएगा जी 2 महीने। जे कोई लोक सभा का मैंबर 2 महीने तक भी नहीं जाता लोक सभा दे विच तां उसकी सदस्यता जिहड़ी है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, जिवें तुसीं स्कूल नहीं जाते उत्थों तुहाडा नाम जिहड़ा कट हो जाता सी, ठीक उस तरीके नाल जे लोक सभा का मैंबर लोक सभा दे विच ना जावे 2 महीने तक ना जाए तो उन्होंने उतों हटा दिता जाता है, उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। नैक्सट लोक सभा का नेता कौन होंदा है। लोक सभा का नेता कौन होंदा है तो कौन होंदा है जी लोक सभा का नेता होंदा जी प्रधानमंत्री। ठीक है, ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होएगा। नैक्सट क्वेश्चन की आपां गल करिए तो इत्थे पूछा गया है जी मूल संविधान दे विच लोक सभा की कुल किन्नियां सीटां सी, या फिर तुसीं कह लो कि मूल संविधान दे विच किन्ने मैंबरां दी व्यवस्था की गई सी तां ओह सी जी 500। ठीक है, तो हुण किन्ने हो गए जी हुण 550। पहला किन्ने सी 552 हाईएस्ट सी, 2 एंग्लो इंडियन हटा दिते गए। ठीक है, ओके ये जिहड़े 550 है इन्हां दे विचों स्टेटां तो किन्ने आंदे है फटाफट दसो सारे जवान कि ये जिहड़े 550 मैंबर है इन्हां दे विचों स्टेटां तो किन्ने मैंबर आंदे ते यूटी तो किन्ने मैंबर आंदे। तो स्टेटां तो किन्ने आंदे जी 524, यूटी तो 19 मैंबर आंदे। ठीक है, ओके नैक्सट क्वेश्चन की गल करिए तो पूछा गया लोक सभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन सी। लोक सभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन सी तुसीं दसना है। तो सही जवाब की होएगा जी सही जवाब होएगा जी मीरा कुमार, ऑप्शन ए। ठीक है, ओके नैक्सट क्वेश्चन के वाल चलते हैं तो इत्थे पूछा गया है जी लोक सभा की सब तो वध सीटां किहड़े राज दे विच है। लोक सभा की जिहड़ी सब तो वध सीटां है वो किहड़े स्टेट दे विच है तुसीं दसनी है। तो किहड़ा स्टेट है जी स्टेट है जी यूपी उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन सी। कितनी सीटां है जी 80 सीटां। अपने पंजाब दे विच 13, अपने पड़ोसी हरियाणा दे विच 10 ते हिमाचल दे विच 4 सीटां ने। ये चीज़ भी तुसीं ध्यान रखनी। नैक्सट आप क्वेश्चन की गल करते हैं, पूछा गया है जी लोक सभा दे पहले अध्यक्ष कौन सी। लोक सभा दे पहले अध्यक्ष कौन होंदा जी स्पीकर। ठीक है, तो तुसीं दसना है लोक सभा का पहला स्पीकर कौन सी। तो ना तुसीं ध्यान रखना है। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर, ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होएगा। 52 तो लेके ये जिहड़े है 56 तक रहे सी। ठीक है, सो ये तुसीं ध्यान रखियो। ये चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन के वल। तो नैक्सट क्वेश्चन के विच पूछा गया है जी किहड़े संविधान शोध राही लोक सभा के मैंबरां की गिणती 525 तो वधा के 545 कर दी गई सी। उस संविधान शोध बारे तुसीं दसना है जिस दे राही जिहड़े लोक सभा के मैंबर सी उन्हां नूं 525 तो वधा के 545 कर दिता गया। तो किहड़ी शोध है बई शोध है जी वो 31वां। ठीक है, ऑप्शन ए सवाल का बिल्कुल सही जवाब होएगा। 31वीं संविधान शोध के राही लोक सभा के जिहड़े मैंबर है उन्होंने गिणती 525 तो वधा के 545 कर दी गई सी। ते इत्थे ही जिहड़े यूटी वाले लोक सभा मैंबर सी उन्होंने गिणती 25 तो घटा के 20 कर दी गई सी। ठीक है, यूटी के मैंबरों की गिणती घटाई गई तो स्टेटां के मैंबरों की गिणती वधाई गई। तो हुण लोक सभा के जिहड़े मैंबर है उन्होंने गिणती कदों तक नहीं वध सकती, वो ध्यान रखियो 2026 तक नहीं वध सकती। उस तो बाद जिहड़ी है वो नवीं लिस्ट जारी होएगी तो अपना जिहड़ा नवां संसद भवन जिहड़ा है वो भी बन रहा है। सो वो चीज़ तुसीं ध्यान रखनी है। अगे चलते हैं आप नैक्सट क्वेश्चन के वल। तो नैक्सट क्वेश्चन के विच अपने तो पूछा गया है जी संविधान के किहड़े आर्टिकल दे विच लोक सभा बारे दस्सिया होया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सब तो पहला भी आपां आही क्वेश्चन देखिया सी, सब तो एंड दे विच भी आपां आही क्वेश्चन चैक कर रहे हैं।
ठीक है। ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਆ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।